گولکنڈہ بونال فیسٹیول کے دوسرے دن شہر کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں عوام گولکنڈہ قلعہ پہنچے۔ شردھالوؤں کی بڑی تعداد کے پیش نظر انڈوپینٹ ڈپارٹمنٹ اور ٹرسٹ کمیٹی نے قطاروں، پینے کے پانی، طبی کیمپس اور سخت سیکورٹی کے بشمول مناسب انتظامات کیے تاکہ یہاں آنے والوں کے لیے کوئی مشکلات نہ ہوں۔ FLO ادارہ حیدرآباد کے قیام کے 25 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر خواتین صنعت کاروں کے ایک وفد نے MCR HRD میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے خیر سگالی ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے ان خواتین کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے حکومت کی جانب سے ممکنہ مدد اور تعاون کا بھی یقین دلایا۔ سٹی سیکورٹی کونسل اور سٹی ٹریفک پولیس کے مشترکہ تعاون سے ٹریفک کی روانی بہتر بنانے اور ہنگامی حالات میں فوری امداد فراہم کرنے کے لیے 30 نئی پیٹرول بائکس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس منصوبے میں 45 کارپوریٹ اداروں نے اپنے CSR پروگرام کے تحت تعاون فراہم کیا ہے۔ پرانے شہر میں کالا پتھر پولیس اسٹیشن کی حدود میں 17 سالہ انٹرمیڈیٹ سال اول کے طالب علم فیض محمد عرف اذان کو نامعلوم افراد نے تیز دھار ہتھیاروں سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ یہ واردات بریانی شاہ ٹکری درگاہ کے قریب پیش آئی۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ فیض کے ارکان خاندان کے مطابق فیض رات تقریباً 2 بجے ایک فون کال آنے کے بعد گھر سے نکلے تھے۔ کسی اس میں انوالو نہیں ہوئے، کبھی کسی کے پاس نہیں جاتے، ریاض میں رہتے لوگ۔ ان کو بتایا ابھی؟ جی ہاں بتا دیے نا، اب کیا کرنا بولیے آپ۔ ہاں انصاف تو دینا نا بھائی، کبھی کسی کے لڑائی میں نہیں ہے ہم لوگ، نہ کچھ ایسا ریکارڈ ہے، نہ دادا پردادا سے نہیں ہے، نہ ہم لوگ یہاں کے ہے۔ جی ہاں اون ہاؤس ہے یہاں پہ، 8 ایئرس کمپلیٹ ہو گئے۔ جی ہاں DGP صاحب سے سب سے ریکویسٹ کریں بھائی، بچے کو انصاف ہونا ہے۔ ایسا مصیبت سے میں یہاں پال اتنے مصیبتوں سے 3 بچے ہیں میرے کو، 2 بچیاں ہیں، یہ بڑا بچہ تھا، ایک ہی بچہ، ہاں ایک ہی تھا بچہ، وہ بھی چلے گیا۔ اب کوئی بھی نہیں ہے ماں، اب کوئی بھی نہیں ہے انکل ہمارا۔ تو اب دیکھیے، اب میں یہاں پہ مصیبت اٹھا کے بڑے کری، ان کے پپا وہاں 17 سال سے 15 سال سے ہے وہاں پہ، انہوں مصیبت مارے گئی کو، پھر ہم لوگ کہاں جانا بولیے، اتنی مصیبتوں سے بچوں کو بڑے کر کے، بچوں کے کچھ اچھا ہوتا بلکہ ہم نہ سوچے تھے یہ بچے کو کئی کو مارے، بولو آپ ہم کیا کرنا۔ اب آپ لوگ انصاف دلانے والے ہیں، نہیں بول تو 3 مہینے میں پیسے کھا کے چھوڑنے والے بھی آپ لوگ ہیں۔ جانے والوں کا تو چلے گیا، انہیں بچہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے حیات جونیئر کالج فرسٹ ایئر CEC میں کم ہے، انہوں کورس لے کے کمپیوٹر کر رہے ہیں گومتی میں۔ ابھی کیا بولنا وہ بولیے آپ۔ DGP صاحب وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سرکردہ شاعر اندیسری کو اپنا روحانی ساتھی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل حالات میں ان کی شاعری نے انہیں حوصلہ دیا۔ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کے دور حکومت پر کئی سوالات اٹھائے۔ నాకు మాత్రం కవి గాయకుడు తెలంగాణ ఉద్యమకారుడే కాదు, నాకు అందేశ్రీ ఒక ఆత్మ బంధువు। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పరిణామాలు, ఆనాటి పాలకులు ప్రజల మీద ప్రదర్శిస్తున్న అహంకార పూరితమైన వ్యవహారం, మాలాంటి ప్రజాప్రతినిధుల మీద పెడుతున్న అక్రమ కేసులు, సంపత్ కుమార్, కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు లాంటి శాసనసభ్యులను శాసనసభ సభ్యత్వాన్ని రద్దు చేసి వారి కర్కశత్వాన్ని شمس-آباد کے بہادرگڑہ میں کسانوں کے احتجاجی مقام پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دھرنا ختم کروا دیا۔ راتوں رات احتجاجی خیمے ہٹا دیے گئے اور کسانوں کو مختلف مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ کسان گزشتہ 9 روز سے بلٹ ٹرین منصوبے کے لیے اراضی کے حصول کے خلاف اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے تھے۔ اس دوران ہائیڈرا نے تقریباً 650 ایکڑ اراضی کے گرد فینسنگ کر دی ہے۔ پولیس نے علاقے کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا اور باہر سے آنے والے افراد کے داخلے کو روکنے کے لیے بہادرگڑہ میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ریاست میں کالیشورم پروجیکٹ سے پانی کی فراہمی کے مطالبے پر کسانوں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ اس دوران مظاہرین نے نعرے لگائے کہ کالیشورم پروجیکٹ کے موٹرز
फौरी तौर पर चलाए जाएं और आबी ज़खायर को पानी से भरा जाए। किसानों और बीआरएस के कायदीन ने अलीपुर से रंगा नायक सागर तक पैदल मार्च किया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर आबी ज़खायर को फौरी तौर पर पानी से ना भरा गया तो एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। एहतजाज के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की गई। टीआरएस की सरबराह की कविता ने कहा है कि मेडिकल बुनियादों पर मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देने वाले तकरीबन 2000 सिंगरेनी वर्कर्स के वारिसों को डिपेंडेंट मुलाजमत फराहम किए जाने तक तहरीक जारी रहेगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत सिर्फ रस्मी अंदाज में मेडिकल बोर्ड मुनक़िद कर रही है। उनके मुताबिक 2000 दरख्वास्त गुजारों में से सिर्फ 120 अफराद के नामों का ऐलान किया गया, जबकि 28 वर्कर्स को तो मेडिकल बोर्ड में तलब किए जाने की इत्तला भी नहीं दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि तलब किए गए अफराद में भी सिर्फ तकरीबन 20% को ही मेडिकली अनफिट करार दिया गया। జై తెలంగాణ సింగరేణి కార్మికులందరికీ కూడా నమస్కారం. తెలంగాణ రక్షణ సేన ఆధ్వర్యంలో సింగరేణి మెడికల్ బోర్డు పెట్టాల్సిందే. ఏదైతే డిపెండెంట్ ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనో పెండింగ్ ఉన్నాయి, దాదాపుగా 2000 మంది వారి కార్మికులు రిటైర్ అయిపోయేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆవేదనకు గురవుతున్నారు, మనోవేదనకు గురవుతున్నారు. మీరు పెట్టాలి అని రక్షణ సేన హెచ్ఎంఎస్ డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. మరి మీరు పెట్టకపోతే గాంధేయ మార్గంలో ఖచ్చితంగా నిరాహార దీక్ష చేస్తామని కూడా ప్రభుత్వాన్ని మేము హెచ్చరించడం జరిగింది. మరి ఆ హెచ్చరికతో కదలొచ్చినటువంటి ప్రభుత్వం అట్టహాసంగా మెడికల్ బోర్డు పెడతామని చెప్పి ప్రకటన చేయడం జరిగింది. నిన్న మెడికల్ బోర్డు కండక్ట్ చేసిండ్రు, పిలిచింది 120 మందిని. అందులో 28 మందికి కనీసం పిలిచినట్టు ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లేదు. शास्त्रीपुरम में हफ्ते की रात देर गए जूतों के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काफी जदोजहद के बाद काबू पाया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता गोदाम में रखा सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। इस वाक़े की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस और महकमे फायर ब्रिगेड इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। आउटर रिंग रोड पर सुल्तानपुर के करीब 3 तेज रफ्तार कारों के तसादुम में 2 अफराद हलाक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक बारिश के बायस टोयोटा फॉर्च्यूनर का ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा, जिसके बाद गाड़ी डिवाइडर से उबड़ करके सामने से आने वाली 2 कारों से टकरा गई। कांग्रेस के एमएलए कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि असल कांग्रेस कारकुनों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है और पार्टी का मकसद राहुल गांधी को वजीर आजम बनाना है। उन्होंने रियासत की असल अपोजिशन जमात बीआरएस पर शदीद तनकीद की। అసెంబ్లీలో 6 కలిసి కొట్లాడినప్పుడు ఇద్దరం కూడా కీలక పాత్ర పోషించిన ఆ రోజు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేసినాం. మా 12 మంది ఎమ్మెల్యేలు తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు ప్రతిపక్షం లేకుండా గొంతు నొక్కేస్తే ఆ బట్టిగారు సిఎల్పి నాయకుడు అయిన తర్వాత ఆ ఎమ్మెల్యేలు పోయిన తర్వాత మేము గట్టిగా నిలబడి కొట్లాడినాం. కాంప్రమైజ్ కాలేదు ఈ ఇష్యూలో కూడా. 6 ఉన్నా సరే 100 మందిని వణికించిన వారు. ఏ ఇష్యూ అయినా సరే ఆ రోజు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు గురించి, యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ గురించి, అవినీతి గురించి, వాళ్ళ అరాచకం గురించి అన్ని రకాలుగా మేము నిలదీసాం ఈరోజు అసెంబ్లీలో. 5 ఏళ్ల పాటు నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా అంటే, మామూలుగా మేము బయట మాట్లాడుకున్నా లోపల మాట్లాడుకున్నా ఒకటి ఏంటంటే, 10 ఏళ్ళు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కాపాడుకుంటేందుకు కార్యకర్తలు పోరాటం చేసి ఎన్ని కేసులు పెట్టించినా ఎంత చేసినా 10 ఏళ్ల పాటు పోరాటం చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకొచ్చింది. समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इखरा हसन ने कहा है कि मुल्क के अवाम और नौजवानों ने सड़कों पर एहतजाज करके अपनी जिम्मेदारी अदा की है। अब अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि इस तहरीक को पार्लियामेंट तक ले जाए। उन्होंने सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल के मसले पर ये बात कही। उन्होंने बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया। बिल्कुल उठाया जाएगा। हमारे देश के लोगों ने, युवाओं ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है सड़क पर आंदोलन करके। अब संसद तक इस आंदोलन को ले जाने का काम हम सभी करेंगे। संगारेड्डी में पेश आए सड़क हादसे में 4 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। ये हादसा जिले के इसनापुर के करीब पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नारायण खेड़े डिपो की
आरटीसी बस और मल्लारेड्डी यूनिवर्सिटी की बस के दरमियान तसादुम हो गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। विजयनगर कॉलोनी में वाक़ FHASS रेसिडेंसी की 5वीं मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड के अमले ने इत्तला मिलते ही बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। आज विजयनगर कॉलोनी में एक फायर इंसिडेंट हुआ मदीना मस्जिद के पास। मुझे इत्तला मिलते ही मैं फौरी DFO हैदराबाद वेंकटनाथ साहब को इन्फॉर्म किया। उससे पहले भी यहाँ पर फायर ब्रिगेड आ चुकी थी। इन्फॉर्म करने के बाद वेंकटनाथ साहब खुद मुशीराबाद से भागते हुए यहाँ पर 10 मिनट में आए और CI मेहदीपट्टनम साहब मियाँपुर में थे, वो भी जो है 15-20 मिनट में जो है स्पॉट पर पहुंच गए और ADFO साहब भी यहाँ पर थे। तमाम टीम यहाँ पर थी मौजूद और मैं यहाँ के आवामी जो लोग हैं यहाँ पे उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने वक्त पर काम किया और बहुत बहादुरी से काम कर यहाँ के लोगों को वैकेट करवाया। खदीर साहब के ससुराल का फ्लैट है, खदीर साहब भी जो है यहाँ पर थे। तमाम लोगों ने अपार्टमेंट के आजू बाजू पड़ोस लोगों ने भी इसमें बहुत साथ दिया। मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथ मेरे साथी कॉर्पोरेटर मल्लपल्ली जफर खान साहब भी यहाँ पर मौजूद है, अखिल भाई भी मौजूद है। ये फायर इंसिडेंट एक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जब बच्ची रूम में थी तो फौरन वालिद को इन्फॉर्म करी कि बाबा यहाँ से आग आ रही है, तो उन लोग ने उसको जो है डिले नहीं किया और इमीडिएटली उसके बाद जो है सब फैमिली मेंबर्स उसको लापरवाही के बिना फौरन उतर गए। उसके बाद आग बढ़ी। आग बढ़ने के बाद ये जैसा एक रेसिडेंशियल एरिया है, फायर फाइटर्स को भी बहुत मुश्किल हुई क्योंकि गैप नहीं है, सेटबैक्स कम है, उसमें बुझाने के लिए बहुत तकलीफ हुई फायर फाइटर्स, मगर दे हैव डन देयर एक्सीलेंट जॉब। यहाँ पर पुलिस हुक्मा भी यहाँ पर मौजूद थी, तमाम ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। माली नुकसान बेशक हुआ है मगर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम कि जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। इंशाल्लाह माली नुकसान हुआ, जो सर्टिफिकेट जल गए। फायर डिपार्टमेंट से और हुमायूं नगर हमारे मेहदीपट्टनम CI साहब से भी हम गुजारिश करेंगे कि तमाम जो डॉक्यूमेंट जल गए हैं उसको फौरी तौर पर इशू कराने के लिए हम कार्रवाई करेंगे और हम यहाँ के जो मुकामी अपार्टमेंट के लोग हैं हम उनको मुतमईन करते हैं कि आप डरने की जरूरत नहीं है। मजलिस हमेशा आपके दरमियान में है। आप हमेशा अगर कोई भी तकलीफ हो तो आप जरूर यहाँ पर आइए और यहाँ के अतनाफ और जो विजयनगर डिवीजन में है यहाँ पर अपार्टमेंट्स कल्चर बहुत है। जैसा DFO हैदराबाद ने कहा है कि हर अपार्टमेंट में एक फायर एक्सटिंग्विशर रहना बहुत जरूरी है। तो मैं आप तमाम अपार्टमेंट एसोसिएशनों से गुजारिश करता हूं कि फायर फाइटर्स जो है आप अपने अपार्टमेंट में इंस्टॉल करिए ताकि टेम्पररी रिलीफ मिल सके फायर ब्रिगेड आने से पहले। तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अयोध्या की राम मंदिर से चंदा चोरी के मामले को उठाया। उन्होंने इस मामले का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। मालूम हुआ कि आज संभल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने भाषण में ये कह दिए कि संभल के तुर्कों के बारे में उन्होंने बड़े ही गलत जुमले इस्तेमाल किए। तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी, अब नहीं चल सकती है। अब तो संभल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि बाबा मुझे बहुत बुरी आदत है, मुझे बहुत बुरी आदत है और शायद जब तक जिंदा रहूंगा इंशाअल्लाह ये आदत बरकरार रहेगी। तो बाबा आपने तुर्कों के बारे में कहा था, तो तुर्क का लफ्ज भी अंग्रेजी में आता है टी से। तो बाबा आपके राज में तो खाली टी का राज है, बाकी सब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। और फिर ये कह देना कि नहीं नहीं अब ऐसा नहीं वैसे होगा। हम बाबा से पूछना चाहते हैं, आपके नाक के नीचे आपका DM, आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उस ट्रस्ट में था और करोड़ों अरबों रुपए की चोरी हो गई। कैसे हुआ बाबा, कैसे हुआ बताओ।
जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ इंहिदामी कार्रवाई दुरुस्त नहीं है। अगर बेकायदगियां हैं तो पहले अदालत फैसला करे। कानूनी खिलाफ वर्जी साबित होने पर कानून के मुताबिक जुर्माना आयद किया जा सकता है। इंहिदाम पहला या वाहिद हल नहीं होना चाहिए। जो किया जा रहा है वो गलत है, गलत है, गलत है। अगर उसके अंदर कोई चीज गलती की है भी, मान लीजिए पहले तो सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला हो, उसके बाद ये समझना कि उसको गिरा दिया जाए, ये गलत है, आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर दीजिए, वो उस जुर्माने को करेंगे। ये जुर्माना आयद करना ये भी गवर्नमेंट का एक कानून है। अगर किसी ने अपने मकान या किसी बिल्डिंग या किसी इमारत के को गैर कानूनी तरीके पर बनाया है तो उसका सिर्फ एक सबब यही नहीं है कि आप उसे गिरा दें, जबकि हजारों लड़के उसके अंदर पढ़ते हैं और वो तालीम हासिल करते हैं, तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अपने कानून की आप हिफाजत करते हुए आप उसके ऊपर जुर्माना आयद कर देंगे, हो सकता है, लेकिन आप उसको ये कह करके 38 इमारतों को हजारों करोड़ के रुपये से बनी हुई उसको गिरा दें, ये गलत है। वही फिरका परस्ती है, वही स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जापान ओपन के फाइनल में यामागुची को शिकस्त देकर खिताब अपने नाम कर लिया। वो इस टूर्नामेंट का टाइटल जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पूरे टूर्नामेंट में उनकी शानदार कारकर्दगी की काफी सताइश की गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजिबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,